Okay, so the chapter is The Beggar. So let's start. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't five kopcheks for a lodging. So this is from some beggar on the road. He is saying, kind sir, have pity. Have little, मेरे ऊपर दया करो. टर्न योर अटेंशन, मुझे देखो और देखो मैं कितना भूखा हूँ. 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं कुछ लॉजिंग मतलब कहीं पे रह सकूँ. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell victim to a calumny. It is a year now since I have had anything to do. तो बोल रहा है कि 8 साल तक मैंने एज ए स्कूल टीचर काम किया एक विलेज में. उसके बाद मेरे साथ कुछ गलत हुआ और मैं उसका विक्टिम हो गया. मतलब कुछ फ्रॉड हुआ होगा, कुछ किया होगा उसके साथ, तो विक्टिम हो गया. और अभी एक साल हो गया. आई हैव हैड मेरे पास कुछ काम नहीं है. द एडवोकेट Sergei looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. तो एडवोकेट सर्गी क्या उसको देख के ऐसा लगा कि मतलब उसका फटा हुआ कपड़ा, उसका जैसे वो अल्कोहल पीने के बाद जो रेडिश आई हो जाता है वैसा, और उसका फेस देख के ऐसा लगा कि जैसे वो मतलब सर्गी उसको कहीं पे देखा है पहले भी. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The medicine went on. But I haven't the money to get there. Help me kindly. I am ashamed to ask, but I am obliged to by circumstances. तो फिर वो बोलने लगा कि मैंने I have now had an offer. तो मेरे पास एक ऑफ़र आया, एक पोजीशन कहीं पे खाली है, मतलब काम खाली है कहीं पे, और उस जगह का नाम क्या है? ऑफ कलूगा. तो लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है जाने के लिए वहाँ पे. कौन बोल रहा है ये? करेक्ट, बेगर बोल रहा है. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and other one low, and he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadvaya Street, he said. अरे तुम्हें तो मैंने देखा है सदवाया स्ट्रीट में परसों. He said, but you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? तो पहली बार क्या हुआ, अभी उसको याद आया, अरे तुमने तो मुझे बोला था कि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें एक्सपेल किया गया, अभी तुम बोल रहे हो 2 दिन के बाद तुम स्कूल टीचर हो. Do you remember? No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I'm a village school teacher and if you like I can show you my papers. तो बोला कि नहीं मैं आपको मतलब नहीं. वो अचानक से क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज्ड हो गया और बोलने लगा नहीं मैं तो स्कूल टीचर हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं पेपर दिखा सकता हूँ. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? बोला कितना झूठ बोलोगे तुमने तो बोला कि तुम स्टूडेंट हो और किस सब्जेक्ट से तुम्हें एक्सपेल किया गया था. तुम्हें क्या याद नहीं है? Sergei flushed and turned from the rat creature with an expression of disgust. तो ऐसे ही चला गया, बोला कि तुमसे बात करके फ़ायदा नहीं है. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is
Swindling. I shall send the police for you. Damn you. तो बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है ना तुम जो कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास पुलिस भेजूंगा. Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. तो अभी जब बोला पुलिस को बुलाऊंगा, बोला कि नहीं सर, मैं झूठ बोल रहा था, ना तो मैं स्टूडेंट हूँ ना तो मैं स्कूल टीचर हूँ. All that was fiction. Fiction मतलब स्टोरी मैंने खुद बनाया. Formerly I sang in a Russian choir. Choir मतलब group of singers. Russian choir में मैं गाना गाता था. And was sent away for drunkenness. तो जो मेरा पीने का आदत था उसके लिए मुझे क्या किया, निकाल दिया काम से. But what else can I do? I can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? तो बोला कि देखिए मैं किसको बोलूँगा, मैं जब भी सच बोलता हूँ तभी मुझे कोई काम पे नहीं लेगा, हर कोई निकाल देगा, क्योंकि मेरा ये आदत बन गया, अल्कोहलिज्म. You ask what can I do? Cried Sergey, coming close to him. Work. तो वो सर्गेई उसके सामने आके बोला काम करो. That's what you can do. You must work. तो बोला कि तुम्हें काम करना चाहिए, काम करो. Work, yes, I know that myself, but where can I find work? How would you like to chop wood for me? तो बोला कि काम तो करना चाहता हूँ मैं, लेकिन कहाँ पे काम करूँ, क्या काम करूँ? तो सर्गेई ने बोला ठीक है, तुम मेरे लिए वुड जो है वो चॉप करना पड़ेगा. Understood? I wouldn't infuse to do that. But in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. तो बोला कि मैं ये ठुकराऊंगा नहीं, ये जो आपने बोला कि मुझे करने के लिए मैं करूँगा, क्योंकि आज के दिन में तो स्किल जो वुड कटर्स है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो भी काम नहीं उसको उन लोगों को मिल रहा है. Will you come and chop wood for me? तो सर्गेई ने पूछा तुम क्या आओगे, मेरे लिए चॉप करोगे वुड? तो बेगर ने बोला yes sir. Very well. We'll soon find out. We'll soon find out. तो बोला कि ठीक है चलो, कोई बात नहीं, तुम्हें हम लोग निकाल लेंगे, मतलब हम लोग देख लेंगे, तुम आओ, तुम्हें करना है कि नहीं करना है, तुम तो बोल रहे हो करना है तो आओ मेरे साथ. सर्गेई hastened along rubbing his hands. Hasten मतलब जल्दी जल्दी चला गया, ऐसे ऐसे रब करते हुए हैंड, मतलब सर्दी था. He called his cook out of the kitchen. तो उसके कुक को बुलाया किचन से. Here, Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. इनको वुड शेड में लेके जाओ. ओल्गा कौन था? उसका कुक. तो उसको बोला ओल्गा इनको वुड शेड में लेके जाओ और वो वुड चॉप करेगा. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went resolutely after the cook. तो मतलब उसको जाना नहीं है, बस ऐसे ही जा रहा है, मतलब he is not that happy about getting this job. He was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame and because he had been trapped by his own words. तो उसको क्या लग रहा था, क्यों वो जाना नहीं चाह रहा था? क्योंकि पहले तो वो हंग्री था, उसके पास काम नहीं था, उसके लिए उसको जाना तो है ही, लेकिन वो अपना जो प्राइड है कि मैं वुड चॉप करूँगा, वो उसको नहीं हो रहा है कि मैं वुड कैसे चॉप करूँ. लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि वो
ट्रैप्ड हो गया है कि मेरे पास काम नहीं था तो उसने काम दिया, नाउ ही इज ट्रैप्ड समहाउ, तो उसको करना ही पड़ेगा। किसने बोला उसको ट्रैप होने के लिए? उसने खुद ही तो उसको खुद को ट्रैप किया। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. मतलब उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं था, जो लकड़ी काटने के लिए स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो उसके पास स्ट्रेंथ नहीं हो था, और वो फील भी नहीं कर रहा था कि स्लाइटेस्ट वो काम करे, हार्ड वर्क करे, कुछ भी नहीं, मतलब उसको फील ही नहीं आ रहा था वो। Sergey hurried into the dining room. From its windows one could see the wood shed and everything that went on in the yard. तो डाइनिंग रूम के विंडो से दिखाई देता था शेड में क्या चल रहा है, तो मतलब वो बेगर को देख पा रहा था क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। Standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. तो जहाँ पे स्नो गिर रहा था, डर्टी स्नो शेड के सामने गया। Olga glared wrathfully at her companion. तो ओल्गा एक फीमेल थी, वो ऐसे देख के मतलब ऐसे देखा कौन कहाँ से इसको पकड़ के लाया। Shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. तो डोर बंद करके चली गई वो। तो उसको वो बेगर को शेड के अंदर डाली और उसको एल्बो से ऐसे साइड करके वो अनलॉक की शेड और एंग्रीली डोर को बैंग कर दिया। Next he saw that pseudo teacher, pseudo means जो तुम दूसरा नाम, मतलब जो तुम नाम एक अलग सा नाम जो तुम दिए हो खुद को, जैसे तुम तो टीचर नहीं हो लेकिन तुमने बोला कि मैं टीचर हूँ, सो समथिंग लाइक दैट। pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thoughts with his red cheeks resting on his fists. तो ऐसे पकड़ के ऐसे सोच रहा था। The woman flung down an axe at his feet. तो ऐसे करके X दिया उसको। Spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him. तो देख के लग रहा था कि वो उसको धमका रही है, मतलब कुछ बोल रही है। The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet and tapped it feebly with the axe. तो क्या हुआ, एक वुड का पीस रखा अपने पैर, दोनों पैर के बीच में, और उसको धीरे धीरे मारने लगा। ऐसे मारने से थोड़ी ना कटेगा। The billet wavered and fell down. तो जब उसको में लगा तो क्या हुआ, गिर गया। The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hands and tapped it with the axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or cutting off his finger. The stick of wood again fell to the ground. फिर वो गिर गया। Sergey's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at a menial labor in the cold. तो सर्गे जो उसको अभी थोड़ी देर पहले मतलब वो गुस्सा था उसके ऊपर कि वो बैक क्यों कर रहा है, मतलब ऐसे झूठ बोल के, अभी उसका हालत देख के उसको थोड़ा दया आया, मतलब कि मैंने क्या कर दिया इसको, ये शायद इस काम के लिए बना ही नहीं, ये शायद उसको आता ही नहीं है, फर्स्ट उसके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है, अच्छा नहीं, सिक है वो, तो मैंने क्या कर दिया।
An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. तो ओल्गा आई वापस आके बोला कि वुड पूरा चॉप हो गया एक घंटे के बाद. गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल. रूबल कहाँ का करेंसी है? रशिया. तो नाउ वी नो दैट इट इज़ इन रशिया, इट्स रशियन स्टोरी. तो उसको हाफ रूबल दे दीजिए. सेड सर्गी ने बोला उसको हाफ रूबल दे दो. तो फिर इफ़ ही वांट्स ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ. तो बोलो उसको अगर चाहिए तो वो हर महीने के फर्स्ट डे को आके कट कर सकता है. वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम. हम लोगों के पास हमेशा काम रहेगा उसके लिए. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ द waif made his appearance and again earned half a ruble, although he could barely stand on his legs. तो फिर वो आया एक महीने के बाद और फिर वो काम किया. हाफ रूबल फिर उसने कमाया, लेकिन इस बार वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था. From that day on, he often appeared in the yard and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the wood shed in order, now beat the dust out of the rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks. And once even a pair of old trousers were sent out to him. और एक बार उसको पेयर ऑफ ट्राउजर्स भी दिया गया. पेयर ऑफ ट्राउजर्स भी दिया गया. Well, I'm happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here is your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? तो बोला कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सर्गी ने उसको देख के बोला ठीक है तुम तो काम कर रहे हो. आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट. तुम मेरा जो ये बात मैंने जो किया वो तुम्हारे ऊपर काम किया. ही सेड हैंडिंग हिम ए रूबल. एक रूबल दे के उसको बोला हियर इज योर पेन्स. आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क. व्हाट इज़ योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो बेगर का नाम क्या था? लुश्कॉफ. Well, Lushkov, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I said to you. Goodbye. तो बोला कि मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड के पास ये लेटर लेके जाओ, वो तुम्हें कुछ कॉपी करने के लिए देगा. अच्छे से काम करना और पीना मत, ठीक है? और मैंने जो बोला वो याद रखना. Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. ठीक है, ऐसे करके बोला कि चलो मिलते हैं. 2 years went by. Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn silkskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. तो 2 साल बाद जब सर्गे एक थिएटर में गया था टिकट लेने के लिए, तब उसके पास एक आदमी आया छोटा सा. वो अच्छे से ओवरकोट पहना हुआ था और सिल्किन कैप पहना हुआ था. तो वो देखते ही पहचान तो आके पूछने लगा कि टिकट दीजिए. किसको? टिकट काउंटर वाले को. और कैसे पे किया? कॉपर कॉइन में पे किया, मतलब कॉइन से पे किया. Lushkov, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? तो उसने लुश्कॉव को देख के बोला, अरे लुश्कॉव कैसे हो तुम? पहचान लिया. All right, I am a notary now and I am paid 35 rubles a month. तो मैं तो अभी नोटरी बन गया हूँ, मैं 35 rubles कमाता हूँ एक महीने का. Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Lushkov. You see, you are my godson. In a
See, you're my godson, in a sense. I gave you a push along the right path. You know. Do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. For not forgetting my words. Thank you too, said Lushkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. I am very glad indeed. तो लुश्कॉफ को बोला कि तुम्हें याद है कि तुम कैसे थे, तो तुम मेरा मुंह बोले बेटे हो तुम, कि मैंने तुम जहाँ पे गिरे हुए थे मैंने वहाँ से तुम्हें उठाया और मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया, लेकिन आज मैं खुश हूँ कि तुम अच्छे रास्ते पे हो। तो लुश्कॉफ ने भी बोला थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं अगर वहाँ उस दिन आप मुझे नहीं उठाते उस जगह से तो फिर मैं क्या होता, मैं अभी तक या तो फिर स्कूल टीचर बन जाता या तो फिर स्टूडेंट बन के लोगों को क्या बोलते फूल बनाता रहता और पैसा बेग करता रहता। Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble omen. You spoke finely then. I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. तो उसने बोला कि आपको पता है आप दोनों अच्छे रहे, स्पेशली आपका जो कुक है वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सेव किया था उस दिन, क्योंकि मुझसे तो चॉप नहीं हो पा रहा था। तो चॉप किसने किया एक्चुअली? वुड ओल्गा ने चॉप किया था। हाउ इज़ दैट? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you miserable creature, there is nothing for you but ruin." And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. "Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you unhappy one." And so she would carry on, in that strain. I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was, she used to chop wood for me. Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you? She did it all. Why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know that, owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right and I shall never forget it. However, it is time to go now. There goes the bell. Lushkov bowed and departed to the gallery. तो क्या बोला कि आपको पता है मैं जब भी आपके घर पे जाता था वुड चॉप करने के लिए, हमेशा आपका जो कुक है ओल्गा वो मुझे बोलती थी तुम्हारे ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम इतने ड्रंकर्ड हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो रोने लगती थी, इतना रोती थी, लेकिन वो मेरे लिए सिंपथाइज़ करती थी। और उसके बाद हर दिन वो मेरे लिए जब भी मैं चॉप किया, मतलब मैं आप सोच रहे थे कि मैंने चॉप किया वुड, लेकिन उसने चॉप करके दिया और मुझे अर्निंग का ज़रिया दिया, क्योंकि वो अगर चॉप नहीं करेगी तो मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो मैं पैसा तो उसका जो वर्ड्स है, उसका जो मतलब एक्सप्रेशंस थे, जो वो मेरे लिए दुख उठाई, उसने रोया, उसके लिए मैं चेंज हुआ, उसका एक एक वर्ड मुझे अफेक्ट किया और इसके लिए मैंने पीना छोड़ दिया। और उसके बाद मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज आया और आज मैं कमा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। सो आई विल बी ऑलवेज इंडेप्टेड, मतलब मैं उनके पास हमेशा ऋणी रहूँगा। एंड ही सेड थैंक यू सो मच, और बोट करके उसने ग्रेटिट्यूड दिखाया अपना और वहाँ से चला गया। फाइन, दैट इज़ अबाउट द बेगर।